وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے۔ کل کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کل مجھے وقت نہیں مل پایا، اس لیے کل کلاس بند تھا۔ انشاءاللہ آج دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پہلی آیت کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں آپ کو میں نے ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کہ اس میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں بار بار آئے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور بسم اللہ کا جب میں نے ترجمہ بتایا تھا تو بسم اللہ کا ترجمہ بتاتے ہوئے میں نے جو آپ کو الفاظ بتائے کتنے الفاظ آئے ہیں اس میں بھی مجھ سے غلطی ہو گیا تھا بتانے میں۔ میں نے بتایا کہ تقریباً 4000، اس میں تقریباً 4000 نہیں ہیں بلکہ 7000 تک ہیں تقریباً۔ آپ میں نے جس طرح سے اس کو گنا ہے، اس کو بسم اللہ میں سین میم اور واو سے اگر سرچ کیا جائے تو اس میں تقریباً 600 کے قریب ہیں۔ میں نے گنا تو 557 الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ اور الف لام ہے یعنی الہ کا اللہ باللہ، اس طرح سے للہ، اس طرح سے کر کے قرآن میں پورے 5587 بار آئے ہیں۔ اور رحمیم رحمان رحیم سے، ٹھیک ہے، رحمان الرحیم کا ترجمہ کریں گے تو رحمیم سے پورے آئے ہیں 841 بار۔ اس میں گننے میں غلطی بھی ہو سکتا ہے مجھ سے، اس لیے تقریباً کہیں تو 7000 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں سے جو کمیاں لی جائیں تو جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کتنا قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا قرآن میں تقریباً 78000 الفاظ ہیں، تو جب قرآن مجید کے صرف بسم اللہ ترجمہ کرنے سے قرآن مجید اتنا آسان ہو سکتا ہے کہ 7000 الفاظ اس میں سیکھ سکتے ہیں آپ، تو اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس سورہ کے پورے آیت کا ترجمہ کر لیں گے جو 42 آیت ہیں، اس سے ہمارے لیے قرآن کتنا آسان ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو کتنا آسان کیا ہے۔ اتنا انشاءاللہ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیں، اور میں جو اگلا آپ کو نہیں بتایا وہ تھا کہ پہلی آیت کا میں نے بتایا نہیں کہ کتنا آیا اس میں۔ پہلی آیت کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس میں سے بھی آپ اس میں بھی دیکھیں تقریباً 5000 تک آئے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے۔ مجھے اس بھی یاد نہیں ہے کہ کون کتنا آیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا۔ اور اس میں جیسے کہ آمن جو آیا تھا الف میم نون سے اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 1200-1300 الفاظ ملیں گے، اور قاف دال میم سے 48 الفاظ ہے، گنا ہوا ہے 48 ہے قاف دال میم سے جو قدمات ہے، تو قدموں میں ٹھیک ہے علامت کو الگ کر دیا، پھر کیا بچتا ہے قاف دال میم، تو اس کے اگر آپ قاف دال میم سے کھوجیں گے تو قرآن میں 48 الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، 48 بار آئے ہیں قاف دال میم کے الفاظ قرآن میں۔ اور آگے بینا، ٹھیک ہے، با یا نون سے اس کو سرچ کیا جائے گا، وہ تقریباً 700 مرتبہ ہے، اور یدئی کا یا دال یا سے کھوجیں گے تو وہ 150 مرتبہ ہے، اور رسول کا 700، ٹھیک ہے، تقریباً بتا رہا ہوں، گنا ہوا نہیں ہے، ویسے مجھ سے گننے میں غلطی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں تقریباً بتا رہا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا کتنا ہے۔ اور رسول کو بتا دیا، اور واتقوا اللہ کا واو قافیہ سے ملے گا، وہ بھی تقریباً 300 ہو گئے، ٹھیک ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور انا کا تقریباً 1000 تک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور سیم میم عین سے جو سمیع کا کیا تھا، سمیع یعنی سین میم عین سے اگر کیا جائے تو اس میں بھی تقریباً 250 ہیں، اور عین لام میم علی جو سمیعون کے بعد علیم آیا تھا، ٹھیک ہے، علیم کا کیا جائے تو عین لام میم سے سچ کیا جائے گا، وہ تقریباً 1200 آئے ہیں، تقریباً 1100-1200۔ تو اسی طرح ملا جلا کر سب ہو گئے تقریباً 5000، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید کتنا آسان ہے، اتنا سے پتہ چل جائے گا۔ آج انشاءاللہ سورہ حجرات کی دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے، اور میں اس میں بھی بتاتا چلوں گا کہ اس میں بھی کون سے الفاظ کتنے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں پہلے، جس سے کہ اور بھی آسانی ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقني حیات سعادت و موت سعادت۔ انشاءاللہ آج سورہ حجرات کی دوسری آیت پڑھیں گے۔ میں آپ سبھی سے پہلے بھی یہ کہا تھا اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد کرتے جائیں، جس سے کہ آپ کو اور بھی آسانی ہوگا۔ آج دوسری آیت پڑھیں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ دوسری آیت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کا ترجمہ کریں گے، اور اس میں آپ دیکھیں، پہلے میں نے بتایا تھا پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا؟ اے اہل ایمان، اے تمام لوگ جو سب ایمان لائے ہوں، یہی آ گیا دوسری آیت میں بھی۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی آمن آیا تھا، اس میں بھی آمن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آمن تھا یا ایھا الذین آمنو، اس میں بھی یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیں پھر سے بتاتا ہوں، اس کے لیے آپ جانے کہ یہ یا ایھا ایتھا یہ کیا ہے۔ یہ حروف ندا ہیں۔ حروف ندا کیا ہے؟ وہ الفاظ جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ حروف ندا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ حروف ندا ہیں۔ مثلا اے، ارے، ابے، اوے وغیرہ، جس طرح سے آپ کی یعنی کہ الگ الگ زبان ہے، ٹھیک ہے، مختلف زبان ہے تو وہ الگ الگ بلائے جاتے ہیں، اے، ارے، ابے، اوے، اس طرح سے کر کے۔ تو یہ جو ہماری زبانیں ہیں تو اس طرح سے بلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ ہمارے یہاں اے کہہ کر پکارتے ہیں، اے، ارے۔ تو اسی طرح عربوں کی زبان بھی اسی طرح ہے۔ یہ سب میں پہلی آیت میں بتا رہی ہوں، لیکن ان کی زبان میں جو ہے تین الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا گیا؟ یا ایھا ایتھا، یا کس کے لیے؟ مرد اور عورت، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یا بولتے ہیں تو اس میں نام لے کر ظاہر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یا اگر کر کے پکاریں گے تو اس میں نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے اگزامپل بتایا تھا، یا خبیب، اے خبیب، یا اسما، اے اسما، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یا ایھا ایتھا، تین میں نے بتایا تھا کہ پہلا کا ہوگا یا، ٹھیک ہے۔ یا کا معنی آئے ہوتا ہے، ایھا کا معنی آئے ہوتا ہے، اور ایتھا کا معنی آئے ہوتا ہے۔ ایھا آتا ہے مذکر کے لیے، ایتھا آتا ہے مؤنث کے لیے۔ اور اب ان میں دیکھیے کہ اگر ایھا اور ایتھا سے پہلے یا آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اور صرف اہمیت دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اس میں آیا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु, तो यहाँ पर अय्युहल्लज़ीना आमनु जो आया है तो या अय्युहा दोनों साथ है, तो ये अहमियत देने के लिए यहाँ पर या का कोई माना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अय्युहा का माना दिया जाएगा। ठीक है, तो या अय्युहा ऐ, ठीक है, ऐ अल्लज़ीना, अभी कल बताया था अल्लज़ीना, अल्लाही, अल्लाह, अल्लती, अल्लज़ीना। ठीक है, अल्लाही का क्या होगा, जो सब मुअन्नस, अल्लती जो एक मुअन्नस, अल्लज़ी, अल्लज़ी जो एक मुज़क्कर, अल्लज़ीना जो सब अशखास। ठीक, आमनु इसमें जमा की अलामत है, वाव अलिफ वा नून या नून, ये 3 अलामतें हैं, वाव अलिफ वा नून या नून, इसको याद करना। ये जमा की अलामत है, जब भी कलमे के आखिर में आते हैं इसको जमा बनाते हैं। ठीक है, हमेशा कलमे के आखिर में आते हैं। जैसे आमनु, आमन जो एक शख्स ईमान लाया, आमनु जो सब अशखास ईमान लाए। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ तो तमाम लोग जो सब ईमान लाए हों, या कहें ऐ अहले ईमान, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों। ठीक, आगे ला, ला क्या, ला का माना नहीं होता है, ये पहले बताया था, और इसमें भी देखिए मैंने आमनु का बता दिया। हाँ, आमनु हो गया। अब ला का माना होता है नहीं, ये मना करने के लिए बात है, नफी करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला, ऐ अहले ईमान नहीं। तरफ़उ, इसमें भी देखिए जमा की अलामत है, जमा की अलामत है। ला का हो गया नहीं, तरफ़उ ता मुखातिब की अलामत है, पहले बताया था, पहले याद में आया था। तुक़द्दिमू वही चीजें हैं जो पहले पढ़े थे, सिर्फ हरफ का माना बदला है। इसमें आया है राफ़िअन, राफ़िअन से इसको डिक्शनरी में खोजा जाएगा लुगात में, तो ये तकरीबन 29 बार आए हैं। रफ़ा का माना होता है बुलंद करना, ऊंचा करना, ऊपर उठाना। ठीक, ला तरफ, देखिए पर यहाँ पर तरफ़उ, ता का माना तुम, रफ़ा यानी उठाना, बुलंद करना, जमा की अलामत है, ता है तुम, जमा की अलामत है तुम सब रफ़ा बुलंद करो। ठीक है, आइए पहले देखते हैं, ये जो ता है, ता मुखातिब की अलामत है। ठीक है, ता का माना तुम होता है। इसी तरह अगर आए का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, तुमना, तुम, ये सब आते हैं, इन सब का माना क्या होता है, तुम, इन सभी का माना है। का तुम एक मुजक्कर, क्या, का माना क्या होगा, तुम एक मुजक्कर, की तुम एक मुअन्नस, कुमा तुम 2 मुजक्कर, तुम 2 मुअन्नस, तुम एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। ठीक है, कुम तुम सब मुजक्कर, कुन्ना तुम सब मुअन्नस। इस तरह कुन्ना का हो गया, तुन्ना तुम सब मुअन्नस, तुम सब मुजक्कर, तुन्ना तुम सब मुजक्कर, तुन्ना तुम सब मुअन्नस। ठीक है, इंशाल्लाह तो समझेगा। इसका इन सब का मान क्या आता है, तुम आता है। ठीक है, आगे है, इसके लिए भी मैंने पहले एक मिसाल बताया था, पहले हु आया था तो उसमें मैंने मिसाल बताया, उसी मिसाल पर आज उसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे। खुबैब एक अच्छा लड़का है, क्या, खुबैब एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर वहां पर पहले इस्तेमाल किया था, वो एक तालिबे इल्म है। यहाँ पर कहेंगे तू एक तालिबे इल्म है, क्या, यहाँ पर मुखातिब करते हुए कहेंगे तू एक तालिबे इल्म है, ये कलम तेरा है। उसमें क्या था, वो उस, इसमें है तू तेरा। ठीक है, ये कलम तेरा है, तू एक तालिबे इल्म है। ठीक है, इन जुमले में तू और तेरा क्या है, इन सबसे मुराद कौन है, खुबैब है। ठीक है, इन सभी से मुराद वही जमीर है, और हर जमीर मारफा होता है, इतना याद रखें। ठीक है, इसलिए इसमें काके की का इजाफा करते हुए तर्जुमा करते हैं। अब देखिए, अब पहले मैंने कहा था कलमहू, उस एक मुजक्कर का कलम, कलमुहा उस एक मुअन्नस का कलम, कलमुहुमा
क्या कलमहुमा उन दो मुजक्कर का कलम, उन दो मुअन्नस का कलम, उन एक मुजक्कर का कलम, उन एक मुअन्नस का कलम, कलमहुम उन सब मुजक्कर का कलम, कलमहुन्ना उन सब मुजक्कर का कलम। लेकिन अब यहाँ पर हम का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, तुम, तुन्ना इस तरह से इस्तेमाल किए देखेंगे। कलमु का वही चीज है, कलमु का क्या होगा इसका माना, का माना तुम एक मुजक्कर, ठीक है, तुम एक मुजक्कर। कलम का माना कलम का यानी तुम एक मुजक्कर, कलमु का तुम एक मुजक्कर का कलम, ठीक है, तुम एक मुजक्कर का कलम। कलमु की तुम एक मुअन्नस का कलम, ठीक है, तुम एक मुअन्नस का कलम। कलमुकुमा तुम दो मुजक्कर का कलम, तुम दो मुअन्नस का कलम, तुम एक मुजक्कर और एक मुअन्नस का कलम। कलमुकुम तुम सब मुजक्कर का कलम, कलमुकुन्ना तुम सब मुअन्नस का कलम। यहाँ पर तुन्ना तुम सब मुअन्नस का कलम, इसी तरह उसमें भी कुन्ना और इसमें तुन्ना तुम, वही माना दिएगा, ठीक है, जो कुम और कुन्ना का आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी तरह है जैसे पहले किए थे, ठीक है, इंशाल्लाह इतना समझ आ गया होगा। अब आगे थे, ता का माना क्या है, तुम, ता का माना तुम, रफा यानी उठा बुलंद करो, ठीक है। आप यहाँ पर देखते जाए, ता का माना तुम, जमा की अलामत ता में मिला दो, जमा है तुम सब, रफा बुलंद करो, रफा बुलंद करो, तरफउ तुम सब बुलंद करो, ठीक है, तरफउ तुम सब, तरफउ तुम सब बुलंद करो, ला तरफउ तुम सब बुलंद ना करो, ठीक है। यहाँ पर मना करने के लिए ला आया है, मना करने के लिए, ला तरफउ तुम सब बुलंद ना करो, अस्वातकुम, यहाँ पर देखिए अस्वात, सौत का जमा है अस्वात, ठीक है, ला तरफउ अस्वात, सद वाव ता से खोजेंगे मिल जाएगा। ये कुरान में तकरीबन 16 बार आए हैं, हाँ 16 बार, ठीक है, सिन वाव ता से सौत, ठीक है। तो यहाँ पर ये सौत का माना क्या होता है, आवाज, आवाज, अस्वात सौत का बस जमा है, बात कुछ नहीं, वही चीज है, बस जमा कर दिया, सौत वाहिद है, इसका जमा क्या है अस्वात। तो अब इसका माना क्या देंगे, आवाजें, आवाज का जमा आवाजें, ठीक, अस्वात आवाजें। कुम क्या होगा, अभी बताया, कुम का माना तुम सब मुजक्कर, ठीक है, तुम सब का माना अब इसमें लगा कर देख लेते हैं सब, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, तुन्ना, ये सब लगा कर देखें, ठीक है। ये देखते हैं, अस्वात पहले सौत था, हु पहले लगाए, पहले वाला जो हु लगाते हैं पहले, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, इस तरह से। यहाँ पर हु लगाए, सौत था, हु लगाए, सौत हु, किसकी आवाज, उस एक मुजक्कर की आवाज, सौतुहा उस एक मुअन्नस की आवाज, ठीक है, उस एक मुअन्नस की आवाज। अस्वातहुमा, क्या अस्वातहुमा, क्यों यहाँ पर अस्वात क्यों, क्योंकि ये अब जमा में जा रहा है। अस्वातहुमा उन दो मुजक्कर का आवाज, उन दो मुअन्नस की आवाज, उन एक मुजक्कर और एक मुअन्नस की आवाज। अस्वातुहुम, क्या अस्वातुहुम उन सब की आवाज, उन सब क्या, उन सब मुजक्कर की आवाज। अस्वातुहुन्ना क्या है, अस्वातुम था, अस्वातुहुन्ना उन सब मुअन्नस की आवाज, अस्वातुहुम उन सब मुजक्कर की आवाज, अस्वातुहुन्ना उन सब मुअन्नस की आवाज, ठीक है। सौती या का माना मैं होता है मेरा, ठीक है, सौती मेरी आवाज, ठीक है, मेरा आवाज। अस्वातुना ये जमा में आता है, अस्वातुना हमारी आवाज, सौती मेरा आवाज, अस्वातुना हमारा आवाज, ठीक है, सौती मेरा आवाज, अस्वातुना हमारा आवाज, ठीक है, ये जमा में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह का भी लेते हैं, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना,
ठीक है, इसको लेते हैं सौत। सौत था, इसमें का लगा दिए, सौत ये में का, सौत का क्या, सौत का तुम एक मुजक्कर की आवाज, यहाँ पर तुम, यहाँ पर मुखातिब करे, तुम एक मुजक्कर की आवाज, सौत की तुम एक मोनस की आवाज, अस्वातुकुमा तुम एक मोनस की आवाज, तुम एक मुजक्कर की आवाज, तुम दो मुजक्कर और दो मोनस की आवाज। ठीक है, तुम दो मुजक्कर की आवाज, तुम दो मोनस की आवाज, तुम एक मोनस और एक मुजक्कर की आवाज। ठीक है, अस्वातुकुम क्या है, अस्वातुकुम तुम सब मुजक्कर की आवाज, अस्वातुकुम तुम सब मुजक्कर की आवाज, अस्वातुकुन्ना क्या, अस्वातुकुन्ना तुम सब मोनस की आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर है अस्वातकुम तुम सबकी आवाजें। ठीक है, तुम सबकी आवाजें। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ अहले ईमान ला तरफ़अू अस्वातकुम नहीं तुम सब बुलंद करो अस्वातकुम अपनी आवाजें। ठीक है, अस्वातकुम अपनी आवाजें, ला तरफ़अू अस्वातकुम अपनी आवाजों को बुलंद ना करो, फौका यहाँ पर देखिए फौका, फौका क्या माना है, फा काफ से मिलेगा, ये 49 बार आए हैं कुरान में। ठीक है, फौका, फौका का माना होता है फौकियत देना, बुलंद करना। ठीक है, ये वही माना जाता है। ठीक है, बुलंद करना, एक से दूसरे पर बुलंद करना, ये होता है फौकियत देना, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है फौकियत देना। तो फौका एक दूसरे को बुलंद कराओ, तो लेकिन यहाँ पर किस पर बुलंद करने की बात है, नबी पे, सौतिन नबी। सौत का माना, सौत का माना हो गया आवाज, अल नबी नबी की, पहला इसम नकरा है, दूसरा इसम मारफा। सौत, सौत का शुरू में क्या लगा, अलिफ लाम लगा है, नहीं लगा, नबी में लगा है, अलिफ लाम लगा है, अल नबी है। ठीक है, अल नबी क्या है, ये मारफा है, पहला इसम नकरा, दूसरा इसम मारफा। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे, तर्जुमा करता है का की का इजाफा करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर, सौतिन नबी नबी की आवाज, फौका सौतिन नबी नबी की आवाजों से ऊपर। ठीक है, नबी की आवाजों से ज्यादा बुलंद न करो। ठीक है, फौका का माना क्या होता है, एक दूसरे पर फौकियत देना, बुलंदी करना। ठीक है, बुलंद करना, एक दूसरे पर बुलंद करना। फौका सौतिन नबी नबी की आवाजों से बुलंद ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी ऐ अहले ईमान अपनी आवाजों को तुम नबी, यहाँ पर अल नबी है, अल नबी से क्या मुराद है, अलिफ लाम लगा खास किया गया, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आवाजें बुलंद ना करो। वला यहाँ पर वह का माना क्या है, वह का माना है, और ला का माना नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी मना करने के लिए आया है। वला वह का माना और ला नहीं, तजहरू। अब यहाँ पर देखते हैं इसे यहाँ पर कैसे तर्जुमा करेंगे। आपको इतना तो याद हो गया होगा, ता क्या है, मुखातिब, ता को अलग कर दिए, जब भी कोई तर्जुमा करना था पहले अलामत को अलग किया करें। ता का माना क्या है, तुम, अलग कर दिए, आगे जमा की अलामत लगा है वाव अलिफ, उसे भी अलग कर दो, हो गया। अब आगे बचा क्या, जिम है रो। ठीक है, इससे अगर हम खोजेंगे डिक्शनरी में तो ये जहर है, इसका माना होता है बुलंद करना। ठीक है, जैसे जहरी नमाज़ें होता है, ये डिक्शनरी में तकरीबन 18 मरतबा आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तजहरू, जहर का माना आता है बुलंद करना। जैसे कि जहरी नमाजें, जहरी नमाजें कौन कौन सी है, इतना याद रखिए कि जहरी नमाजें वो है जिसमें इमाम किरात बुलंदी से करते हैं। अब आप नमाज पढ़ते हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी ऐसी नमाजें हैं जिसमें इमाम साहब किरात बुलंद आवाज से करते हैं। ठीक है, फजर की नमाज में होता है जोहर की नमाज में होता है, नहीं होता, वो जोहर की नमाज में बुलंदी से नहीं होता, असर में भी नहीं होता, मगरिब में होता है, इशा में होता है। ठीक है, ये 3 नमाजें हैं जो
बुलंदी से पढ़े जाते हैं, ये सब जहरी नमाजें हैं। ठीक है, तो जहरी नमाजें यानी बुलंदी से जिसमें किरात किया जाए बुलंद आवाज से, तो जहरी नमाज है। ठीक है, तो वला तजहरू, ना तुम बुलंद करो। जहर का माना बुलंद, जहर यानी बुलंद करना, आवाज को बुलंद करना। तजहरू तुम बुलंद करो। ठीक है, तजहरू तुम बुलंद करो। तजहरू जमा की अलामत लगा दिए, तुम सब बुलंद करो। ला तजहरू तुम सब बुलंद ना करो। ठीक है, ला तजहरू तुम सब बुलंद ना करो। लहू, यहाँ पर देखिए लाम, जब कलमे शुरू में आते हैं लाम, ये लाम दो तरह के होते हैं, लामे तालील, लामे लाजिम। ठीक है, यहाँ पर इसके माने क्या आएंगे? लाम दो तरह के होते हैं, इसके माने आते हैं नहीं, एक का माना होता है के लिए, एक का माना होता है यकीनन, बेशक, वास्तव में। ठीक है, निसंदेह, इस तरह से, यानी यकीनन का माना देता है। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है लामे तालील। क्यों यहाँ पर लामे लाजिम नहीं, यहाँ पर यकीनन है? क्योंकि जब इसका तर्जुमा करने जुमला नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाम का माना क्या आ गया? के लिए। हु उसक मुजक्कर, यहाँ पर हु से मुराद कौन है? उस एक मुजक्कर। अब यहाँ पर हु से मुराद है, जब जमीर में ये जमीर आता है तो उस पर मुराद होता है जब इससे पहले किसी का नाम लिया गया हो। पहले नाम लिया गया था किसका? अल नबी, यहाँ पर अलिफ लाम लगाकर खास किया गया था, और अल नबी ने क्या पता चला कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया जा रहा था। तो इससे पता चलता है कि हु से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, वला तजहरू लहू, और उनके लिए, उनके कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक है, तजहरू तुम सब बुलंद ना करो, लहू उन सब के लिए, वला तजहरू लहू, और तुम उनके, उनके कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाजें बुलंद ना करो। ठीक है, वला तजहरू लहू बिलकौल, यहाँ पर आगे है बिलकौल, वला तजहरू लहू, और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाजें बुलंद ना करो बिलकौल। यहाँ पर बा का माना है में, पहले बताया था बा का माना कैसा? बा का माना से भी है। उर्दू अरबी में बा के तकरीबन 14 माने हैं। ठीक है, बा का माने यहाँ पर लेते हैं में। बा का माना में है कौल, कौल आ जानते अलिफ लाम लगा है खास करने के लिए। ठीक है, कौल का माना बात, या कुल कहो, कीला कहा जाता है, इस तरह से इसका तर्जुमा किया जाता है। और ये कौल जो है एक कुरान में तकरीबन 2500 बार आए हैं। ठीक है, मैं जब गिना तो उसके हिसाब से, गिनने के हिसाब से 2588 बार आए हैं। ठीक है, किस हर्फ से? काफ वाव लाम से। ठीक है, ये कभी कौल से आए हैं, कभी कुल, कीला। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कौल, इस तरह से आते हैं, कुरान में बहुत बार आए हैं। इन सब का माना एक होता है बात, ठीक है, कहो, कहना, यही सब होता है। बिलकौल, कौल यानी गुफ्तगू, बातों में। बा का माना में, बिलकौल बातों में। ठीक है, वला तजहरू लहू बिलकौल। ठीक है, और तुम बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। ठीक है, कजहरी, कैसे बुलंद नहीं करना है? कजहरी जैसा कि बुलंद करते हो। क्या माना? जब यहाँ पर काफ आता है शुरू में तो उसका माना होता है, कलमे के शुरू में जब काफ आता है उसका जैसा कि, जिस तरह, इस तरह से माना लिया जाता है। ठीक है, कजहरी जहर का माना बुलंद। ठीक है, बुलंद करना। कजहरी जैसा कि बुलंद करते हो, कजहरी जैसा कि बुलंद करते हो, या जिस तरह बुलंद करते हो। बादुकुम, बादिकुम, या बादिकुम लिबादीन, बादिकुम, बाज ये उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बाज का माना से हम इस्तेमाल करते हैं बाज अपने। ठीक है, आपस में। ठीक है, ये बा ऐन दाद से मिल जाएगा आपको।
कुरान में तकरीबन 300 से ज़्यादा बार आया है। ठीक है, बादिकुम, बाज का माना यहाँ पर जो उर्दू में बाज कहते हैं, बाज, ठीक है, आपस से एक दूसरे। बादिकुम लिबादिन, तुम्हारे बाज, लिबादिन लाम तालील है, यहाँ पर लाम का माना के लिए, लिबादिन बाज के लिए। ठीक है, यहाँ पर कजहरी बादिकुम लिबादिन, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के लिए ये आवाज बुलंद करके बातें करते हो। अब पूरा तर्जुमा है, वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बादिकुम लिबादिन, और तुम सभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाजें उस तरह से बुलंद ना करो जैसा कि तुम्हारे बाज के लिए बुलंद करते हैं। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की बुलंद आवाज़ों से ऊपर ना करो या बुलंद आवाज़ से ज़्यादा बुलंद ना करो। वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कज़हरि बादिकुम लिबादिन, और तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातों में उस तरह से आवाज़ें बुलंद ना करो जैसा कि तुम्हारे बाज के लिए बुलंद आवाज करते हैं। अब आगे इसका अजाब भी बताया गया, अगर कोई बुलंद करता है तो उसके लिए अजाब क्या है, देखिए। अंतहबता, अन का माना के, ठीक है, अन का माना के, इन का माना अगर, अन इन क्या है, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह कहते हैं, इन का माना अगर, शाह यानी चाहे, अल्लाह यानी अल्लाह, इंशा अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है, अगर अल्लाह चाहे। तो अन का माना के, इन का माना अगर। तहबता, यहाँ पर जो ता आया है, ता का यहाँ पर कोई माना नहीं है। क्यों? देखते हैं, अगला आप देखेंगे, अगला कलमा जो है वो अगला जमा में है। जब अगला कलमा जमा में है उस वजह से यहाँ पर जो ता है उसको बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर ता का कोई माना नहीं आएगा। यहाँ पर हबत, हबत का माना जो उर्दू में इस्तेमाल जाता है खबत का, ठीक है, जाया हो जाना, खबत। ठीक है, तो यहाँ पर हबता जाया हो जाए, अंत हबता के जाया हो जाए, आमालुकुम, आमालुकुम, अमल, अमल की जमा अमाल है, अमल यानी तुम्हारे अमल। ठीक है, तुम्हारे सभी अमल, कुम तुम सबके, अमल तुम सबके, अमालकुम अमल तुम सबके, अंतहबत अमालकुम कि बर्बाद हो जाएं, जाया हो जाएं तुम सबके अमाल। वला क्या, व अंतुम ला तशउरून, व का माना होता है और, अंतुम तुम सब। ठीक है, अंता अंति अंतुमा अंतुम अंतुन्ना इंशाल्लाह आगे बताएंगे। तो क्या, तो अंतुम का माना होता है तुम सब। ठीक है, व अंतुम ला नहीं, और तुम सब नहीं। तशउरून, ता क्या है, मुखातिब की अलामत, जिसका माना क्या होगा, तुम। शऊर, ये उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, शऊर। ठीक है, पता होना, किसी चीज का नॉलेज होना, कोई चीज पता चलना, यह है शऊर होना। यह चीज हमें पता, हमें इसका शऊर है। ठीक है, तशउरून, यहाँ पर देखिए एक चीज हमें समझने की बात है, शऊर, यहाँ पर जो उर्दू में जो शऊर होता है वो यहाँ पर शिन पर जबर होता है, यहाँ पर रुकिए, शऊर, तशउरू जो उर्दू में होता है और अरबी में होता है, इसमें सिर्फ फर्क कितना होता है ये देखिए। अरबी में जहाँ जबर करते हैं इस्तेमाल, वहाँ पर उर्दू में अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पर अरबी में जेर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर उर्दू में या का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर अरबी में पेश का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर उर्दू में वाव का इस्तेमाल होता है। तो सऊर, तशउरून, यहाँ पर आयन के बाद उर्दू में देखेंगे तो आयन पर जहाँ पर पेश है वहाँ पर उर्दू में वाव लगा हुआ। ठीक है, बस इतना फर्क है। तशउरून, तुम सब शऊर नहीं रखते, तुम सब नहीं जानते। ठीक है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज़हरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालकुम व अंतुम ला तशउरून। अहले ईमान, तुम अपनी आवाज़ को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से ज़्यादा बुलंद ना करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बातों में उस तरह से आवाज़ें बुलंद ना करो जैसे तुम्हारे बाज के लिए करते हैं कि तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो, तुम सबके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये पूरा तर्जुमा हुआ। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें उर्दू में इस्तेमाल किए जाने वाले कौन कौन से कलिमा मिलते हैं। आमन, ये भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, आप देखते जाएं। आमन ला भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है और तरफ़अू, ठीक है, तो रफ़ा भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। अस्वात सौत भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर ज़्यादा नहीं किया जाता लेकिन होता है उर्दू में इस्तेमाल। ठीक है, उर्दू में बोला जाता है। फ़ौक़ा का भी इस्तेमाल किया जाता है, फौकियत देना। ठीक है, सौत का भी उर्दू में मैंने बताया है। इसमें देखिए कितने कलमा मेरे हैं जो कि उर्दू में, नबी का भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। वला, ये भी उर्दू इस्तेमाल किया जाए, हुआ और ला दोनों इस्तेमाल किया जाता है। और तजहरू, ये जहरी नमाज़ें कहते हैं ना, जहर, तो जहर भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कौल भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर फिर देखिए जहर आया, फिर वो भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बादुकुम लिबादिन, तुम्हारे बाज के लिए। ठीक है, अंत हबत इस्तेमाल किया जाता है, हबत नहीं होता है। ठीक है, और अमालकुम, अमल ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, वह भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। लाबी और शऊर भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। माशाअल्लाह। आज हमने जो तर्जुमा किया, तो आज की सूरह में तकरीबन हमने सीखा 4000 अल्फाज, कुरान में जो 4000 बार आए हैं, इन अल्फाजों को सीखा जो कुरान में तकरीबन 4000 आए हैं। माशाअल्लाह, हम बहुत ही जल्द कुरान के जो मैंने बताया था तकरीबन 78,000 अल्फाज आए हैं कुरान में, तो उसको भी सीख जाएंगे। आज हम कितना कम कर दिए उसमें से ये देखते हैं। आज बिस्मिल्लाह से लेकर सूरह हुजरात की दूसरी आयत तक हमने सीखा तकरीबन 16,000, कितना 16,000 ऐसे कुरान, इसमें ऐसे अल्फाज सीखे जो कि कुरान में तकरीबन 16,000 बार आए हैं। कितने बार? 16,000, तो तकरीबन 78,000 था। ठीक है, तो अब कितना बचा? तकरीबन बचा 62। ठीक है, 62,000 बचे हैं माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह वो भी जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये जो 42 आयत हैं, इंशाल्लाह आप जब 42 आयत का तर्जुमा करेंगे तो इसमें आपको कुरान का तर्जुमा करना बहुत ही आसानी से आ जाएगा और आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और दूसरों को भी बताएं कुरान बहुत आसान है। और जो भी चीज़ें समझ नहीं आता आप मुझसे रब्ता करें, मुझसे कांटेक्ट करके जो भी इसमें कुछ भी समझ में आए आप मुझसे पूछें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।